Good evening, friends. On the evening before the Republic 72nd Republic Day tomorrow, Easy English by Eddie Singh greets all its viewers and friends a happy Republic Day. Tomorrow being the Republic Day, it's a great privilege for all of us to celebrate the 72nd Republic of the nation. The entire nation is tomorrow in full swing to celebrate this national festival. We are proud to salute our martyrs and our soldiers who have been safeguarding us, who have been posted at the borders in order to keep the solidarity of the country intact. These soldiers have been working day and night and to safeguard the border of our country. We salute all those soldiers who have lost their life in making India a democratic republic. It is all the sacrifices of our great martyrs who sacrificed their life to make us proud to be called the Indian democratic citizens. Had it not been for their sacrifice and their hard work, India would never have become a democratic republic. The largest democracy of the world, India boasts the privilege of having the bravest soldiers of the soil. The we at one hand we salute all the soldiers. On the other hand, we also take the responsibility of keeping the solidarity and integrity of the country intact. Though our country is marching on the path of progress by leaps and bounds, yet we have challenges to overcome. So, with that, we wish once again all the Indians, all our friends in India and abroad, a happy Republic Day. On the request of some of our friends, I am going to start a very simple conversation. My friends have just requested that while I am speaking and giving some grammar rules and discussing about conversational English, I should also use some Hindi sentences equivalent to the English one and also tell them in Hindi how to, the same Hindi sentence into English. Well, ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है कि जो कुछ बताते हैं हम उसको हिंदी में भी बताएं। तो आज सबसे पहले शुरुआत में ही हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, हम लोग जो भी बातें करते हैं, वॉट एवर कन्वर्सेशन वी कंटिन्यू विद एनीबडी, ऑल कन्वर्सेशंस, जितने कन्वर्सेशंस है, दे आर मोस्टली इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं, whenever we talk, जब हम बात करते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे whenever we talk, और whenever we continue or initiate a dialogue, जब भी हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, dialogue, that is वार्तालाप, whenever we initiate a conversation or a dialogue with somebody, तो प्रश्न और आंसर दोनों होता है। तो जैसे हम किसी से पूछते हैं आप कौन हैं, हु आर यू, आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो ये तीनों सेंटेंस देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप कौन हैं, हु आर यू, हु मीन्स कौन, आर यू आप कौन हैं, क्वेश्चन मार्क, वेयर हैव यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आए हैं, व्हाट डू यू डू आप कौन सा काम करते हैं, व्हाट डू यू डू क्या करते हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं। तो आपका आंसर हो सकता है
Well, I'm Mr. Sinha. I have come from Bangalore. Well, I work as a news reporter. Anything like that. अब दो बच्चे अगर बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इनिशिएट करते हैं, बोलते हैं चलो लेट्स गो, चलो हम चलें, लेट्स गो टू स्कूल, चले हम स्कूल, चलो हम स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल। वेल तब उसके बाद बात करते हैं कि कल तुमने क्या किया था, तो थोड़ा पास्ट में जाते हैं। व्हाट डिड यू डू एस्टरडे, व्हाट डिड यू डू एस्टरडे, यानी व्हाट से क्वेश्चन हुआ और डिड लगा। व्हाट डिड यू डू एस्टरडे, आपने कल क्या किया। वो बोलेगी आई सॉल्व मैथमेटिक्स द होल डे। वेल इट वॉज संडे, आई सॉल्व मैथमेटिक्स। Oh, did you complete your assignment? Yes, I completed my assignment. क्वेश्चन होगा पास्ट में तो आंसर भी, मैंने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान सबसे आसान है कि आप जब भी कहते हैं, देखिए जो हिंदी का वाक्य है उसमें ता ते ती का माने यांत में रहना होता है। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, वह गाता है, वह पढ़ता है, तो इसमें ताते ती जहाँ दिखे समझिए कि सिंपल प्रेजेंट है। आई गो टू स्कूल, आई टेक माई लेसन्स, आई टीच माई सब्जेक्ट, वी गो फॉर शॉपिंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ, हम लोग अपना उठ करके मुंह साफ करते हैं, दांत ब्रश करते हैं। वी टेक और बात, हम लोग अपना स्नान करते हैं। देन वी टेक और ब्रेकफास्ट, तब हम लोग अपना नाश्ता करते हैं। देन वी गो टू स्कूल, आफ्टर 3 or 4 hours वी कम बैक फ्रॉम स्कूल, देन वी सिट फॉर स्टडीज, हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं। इसमें एक ही स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और ये देखना रहता है जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि हमने WH क्वेश्चन किया या ये यस नो टाइप क्वेश्चन किया। जैसे आप समझ रहे हो ना, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू गेट इट, क्या आप समझ रहे हो, डू यू गेट इट, डू यू अंडरस्टैंड, वो आंसर देगा यस आई डू अंडरस्टैंड, यस आई गेट इट। हमेशा क्वेश्चन भी प्रेजेंट में होगा और आंसर्स में। फिर दूसरा, व्हाट डिफिकल्टी डू यू हैव, क्या आपको कोई कठिनाई है, क्या किस तरह की कठिनाई आपको है। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टी डू यू हैव इन लर्निंग द लेसन। कोई कह सकता है वेल आई डू फाइंड द कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट, और आई डू फाइंड द एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट, और आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। ये भी कह सकता है कि जो एक्सप्लेन किएगा वो हम नहीं समझ रहे हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, आई डू नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मैं जो वाक्य लिखे हुए हैं उसका मीनिंग नहीं मैं कर सकता हूँ। तो इसमें ध्यान देना है कि जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाएं, व्हाट से, वाई से, तो पहले एक्सिलरी को लाएं। जैसे व्हाट प्लस डू डज, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। जैसे व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, इसका आंसर भी होगा आई वांट ए पेन। वेल व्हाट एल्स डू यू वांट, आई वांट ए कॉपी। वाई डू यू वांट दीज थिंग्स, वेल आई वांट टू राइट समथिंग, आई वांट टू राइट, मैं कुछ उस पर लिखना चाहता हूँ। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और ये दिमाग में रखिए कि जब भी आप कहीं बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो ये देखना है कि हमें इम्फेटिक सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आई डू रियलाइज, ये इम्फेटिक हो गया, हाँ मैं निश्चित रूप से ये महसूस कर रहा हूँ। आई डू रियलाइज, आई आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ। अगर कोई बोलता है आई अंडरस्टैंड मीन्स ही सिंपली अंडरस्टैंड्स, लेकिन अगर वो कहता है कि आई डू अंडरस्टैंड मीन्स ही सर्टेनली अंडरस्टैंड, सेंटेंस इम्फेटिक होते जाता है। तो बात करते समय ये सब सेंटेंस का यूज हमेशा होता है। और ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे बात करने में, और कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि आप कोई फ्रेज यूज कर दिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिंपल प्रेजेंट इज वेरी इजी। सिंपल प्रेजेंट, वास्तव में सिंपल प्रेजेंट बहुत ही आसान है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बीच में एक फ्रेज यूज कर दिए। इंडीड, वास्तव में, इंडीड माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। वेल इट इज ए फ्रेंडली टॉक, हाँ ये तो एक फ्रेंडली बातें हो रही है, ये फ्रेंडली कन्वर्सेशन है। हम सभी फैमिली के मेंबर हैं, वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली,
हमें फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। वी डोंट नीड एनी फॉर्मेलिटी, वी डू नॉट नीड एनी। अभी देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी उसमें करते जाना है। आई डू नॉट नीड एनी फॉर्मेलिटी, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ casuality, I don't need any kind of you know information from you। मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। आई डोंट नीड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, आई डोंट वांट एनी सजेशन फ्रॉम यू। मुझे आपसे कोई सलाह नहीं लेनी है। आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये सब यूज़ करेंगे आप नेगेटिव में यूज़ होते जाएगा। तो जो बात आप कर रहे हैं हिंदी में जैसे बात करते हैं, एज फॉर इंस्टेंस यदि आप हिंदी में कहते हैं मैं यह काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क एवरी डे, मैं रोज अपना काम अपने से करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने करता हूँ। वह अपना काम अपने करता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डजंट टेक हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स, वह किसी दूसरे का मदद नहीं लेता है। शी डजंट टेक हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स, वह लड़की किसी का हेल्प नहीं लेती है। डज सी रियली टेक एनी हेल्प ऑफ एनीबडी? नो, शी डजंट टेक। तो इस तरह से हमें कन्वर्सेशन में ये ध्यान रखना होगा कि हम हिंदी से अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू। और दूसरे वीडियो में भी हम लोग और बातें करेंगे। थैंक्स अ लॉट।